अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आज दोपहर ठीक 1:04 पर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िदा अजीमुशान तकरीब में हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके साथ वुज़रा मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा, पुन्नम प्रभाकर ने भी हलफ लिया। कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन बशमूल पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वज़ीर आला कर्नाटका सिद्धारामैया, उनके नायब DK शिवकुमार, कर्नाटक के कई वुज़रा और पार्टी कायदीन के अलावा दूसरी रियासतों के पार्टी कायदीन ने भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले 300 अफराद के अरकान ख़ानदान भी शरीक हुए। इस तकरीब में तकरीबन 1,30,000 अफराद शरीक हुए। कांग्रेस की मरकज़ी क़यादत ने वसीतर मुशावरत के बाद इस अहम तरीन ओहदे के लिए रेवंत रेड्डी के नाम को खतियत दी थी। इस तकरीब में रियासत के मुख्तलिफ अजला से कसीर तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने भी शिरकत की। అనే నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. I see Damodar Rajanarasimha, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the State of Telangana, that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law without fear, favor, affection or ill will. I శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల
నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతాను. బట్టి విక్రమార్క మల్లు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారు అనే నేను శ్రీమతి కొండా సురేఖ అనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ అనే నేను ధనసరి అనసూయ సీతక్క అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం. चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने 12 वुज़रा के साथ हलफ ले लिया, लेकिन अफसोस है कि इस मरतबा एक भी मुस्लिम चेहरा काबीना में नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मरतबा 5 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें एक भी कामयाब नहीं हो सके। इसके बावजूद ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मुसलमान को काबीना में नुमाइंदगी देगी, क्योंकि मुसलमानों के वोटों की बदौलत कांग्रेस को इख्तियार हासिल हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस क़यादत ने इस सिलसिले में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिससे रियासत के मुसलमानों में मायूसी पाई जाती है। नई काबीना में 12 वुज़रा को शामिल किया गया है, मजीद 6 वुज़रा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। तवक्को है कि काबीना की तौसी में मुस्लिम नुमाइंदगी दी जाएगी। शायद मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत में ये पहला मौका है जिसमें काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर शामिल नहीं है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को आज आज़ादी हासिल हुई है। अवामी तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए आज इंदिरम्मा राज आया है। एलबी स्टेडियम में हलफ वर्दारी के बाद अवाम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। మీకందరికి మాట ఇస్తున్న మిత్రులారా, ఈనాడు ప్రగతి భవన్ చుట్టూతో ఉన్న ఇనుప కంచెల్ని బద్దలు కొట్టినాం. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు అక్కడ జ్యోతిరావు పూలే ప్రజాభవన్ లో ప్రజా దర్బారు నిర్వహిస్తాం. మా తెలంగాణ ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి హక్కులను కాపాడడానికి, ఈ నగర అభివృద్ధి కోసం శాంతి భద్రతలను కాపాడుతూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలతో కాదు ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లి పేదవాళ్లకు నిస్సహాయులకు సహాయకారిగా ఉంటూ నిస్సహాయులు ఎవరు కూడా మాకెవరు లేదు। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की हैसियत से हलफ लेने के फौरी बाद रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर पहली दस्तखत की। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी का ऐलान किया था। आज एलबी स्टेडियम में तकरीबी हलफबर्दारी में हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने उन स्कीमात पर अमलावरी से मुतालिक फाइल पर पहली दस्तखत की। तेलंगाना के अवाम को कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतें दी थी। इसमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को हर माह 2500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, आरटीसी की बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र का भी ऐलान किया गया था। रियासत के तमाम किसानों को 15,000 रुपये फी एकर और ज़रूरी मजदूरों को 12,000 रुपये की माली इमदाद देने का वादा था।
ज्योति योजना के तहत हर खानदान को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। इंदिरम्मा इंदलू स्कीम के तहत घर के लिए ज़मीन फराहम करने का वादा किया गया। साथ ही उन खानदानों को 5 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी जिनके पास अपना घर नहीं है, ताकि वो घर की तामीर कर सकें। युवा विकासम योजना के तहत तलबा को 5 लाख रुपए की इमदाद, जिसे वो कॉलेज की फीस अदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। चियोता स्कीम के तहत बुजुर्ग और कमजोर तबकों को 4,000 रुपए की पेंशन का भी वादा था। I request Honorable Minister to sign 2 files. వారి రేవంత్ రెడ్డి గారి నిర్ణయం ప్రకారంగా 2 ఫైల్స్ పై సంతకం చేస్తారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తమ ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే 6 గ్యారంటీలకు సంబంధించిన ఫైల్ మీద తొలి సంతకం చేస్తానని వాగ్దానం చేశారు. ఈ 6 గ్యారంటీల అమలుకు సంబంధించి అభయహస్తం చట్టానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తూ ఇప్పుడు తొలి ఫైల్ పై సంతకం చేస్తారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆఫీసర్స్ కన్సర్న్ టు బ్రింగ్ ది ఫైల్. चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने पस्तकद लड़की को सरकारी नौकरी का तखरुनामा हवाले करते हुए अपना दूसरा वादा पूरा कर दिया। हैदराबाद के नामपल्ली की एक बौनी लड़की रजनी को तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के इख्तिदार में आने के फौरी बाद सरकारी मुलाजमत फराहम करने का वादा किया था। पस्तकद लड़की रजनी ने 17 अक्टूबर को रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी और बताया था कि उसने पीजी की तालीम मुकम्मिल की है, इसके बावजूद नौकरी नहीं मिली। रजनी ने रेवंत को बताया कि उसे प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी नहीं मिल रही है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने रजनी से कहा था कि चंद दिन में कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है। हलफबर्दारी की तकरीब 9 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी आएंगे। कांग्रेस पार्टी उसी दिन आपको नौकरी दे देगी। रेवंत रेड्डी ने खुद रजनी के नाम से कांग्रेस का गारंटी कार्ड भरा था और आज अपना वो वादा पूरा कर दिया। I request Honorable CM to file ఇంకో ఫైల్ మీద సంతకం చేసి మన ఫిజికల్లీ డిబోల్డ్ రజనికి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ హామీ మేరకు ఆ ఫైల్ మీద సంతకం చేసి అమ్మాయికి నియామక పత్రాన్ని కూడా అందజేస్తున్న దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. రెండు 6 గ్యారంటీలకు సుగమం చేస్తూ అభయహస్తం చట్టానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తున్న ఫైలు, అలాగే తాను ఇదివరకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా తుమ్మరి రజని అనే అమ్మాయికి సంబంధించిన ఫైల్ మీద సంతకం చేసి ఆ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ వారికి అందజేస్తున్నారు. అయ్యా तेलंगाना के वजीर आला की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन के पास से खारदार बाढ़ निकाल दी गई। यह खारदार बाढ़ गुज़िश्ता 10 साल से थी, ताहम रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद ये खारदार बाढ़ निकाल देने की पुलिस को हिदायत दी गई थी, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने गुज़िश्ता शब इस बाढ़ को कामयाबी से निकाल दिया। बीआरएस ने वहां पर बैरिकेड्स भी लगवाए थे, जिसको भी हटा दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया।
కానీ तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वुजरा में नए कलमदान तकसीम कर दिए गए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक भट्टी विक्रमार्का को ये नायब वजीर आला भी हैं और उन्हें रेवेन्यू का कलमदान दिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी को महकमे दाखिला, दामोदर राज नरसिम्हा को महकमे सेहत, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी वजीर बल्दी नज़्म नस्क होंगे। श्रीधर बाबू को महकमे फाइनेंस सौंपा गया। तुमला नागेश्वर राव को रोड्स एंड बिल्डिंग्स का महकमा दिया गया। जूपल्ली कृष्णा राव वजीर सिविल सप्लाईज होंगे, जबकि पुंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी महकमे आबपाशी की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। पूनम प्रभाकर को बीसी वेलफेयर, कोंडा सुरेखा को खवातीन और अतफाल बहबूद और सीतक्का को कबायली बहबूद का कलमदान दिया गया। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना स्पीकर के तौर पर जी प्रसाद कुमार के नाम का इंतखाब किया। वो इस तेलुगु रियासत जिसकी तश्कील 2014 में अमल में आई है उसके तीसरे स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रसाद ने विकाराबाद से कांग्रेस एमएलए के टिकट पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने 2008 में पहली बार एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। 2012 में उन्होंने साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की काबीना में वज़ीर टेक्सटाइल के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। प्रसाद राव कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उन्हें मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में वजीर के तौर पर काम करने का तजुर्बा हासिल है। उनकी पैदाइश 1964 में विकाराबाद जिले के मारपल्ली गांव में हुई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में आज काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। शाम 5 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में ये इजलास मुनक्किद किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आते ही 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी का वादा किया था। चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने पहली दस्तखत इसी फाइल पर की थी। जरा के मुताबिक काबीना के इजलास में 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी और आने वाले दिनों में इख्तियार किए जाने वाली हिकमत अमली जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर बी शिवधर रेड्डी को मुकर्रर किया गया, जबकि चीफ मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे की जिम्मेदारी शेषाद्री को सौंपी गई है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। रेवंत रेड्डी के बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लेने के बाद ये अहकाम जारी किए गए। इतलात है कि रेवंत रेड्डी मजीद ओहदेदारों के तबादले का मंसूबा रखते हैं। वाज़ेह है कि आज रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना में 6 ज़मानतों पर अमल करेगी, जिसका वादा किया गया था। वज़ीर आला तेलंगाना के तौर पर रेवंत रेड्डी की हलफबर्दारी की तकरीब में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया के साथ रियासती दारुल हुकूमत पहुंचे शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के हक में क़त्ए एतमाद पर रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी कहा है उस पर अमल किया जाएगा। शहर हैदराबाद में रेवंत रेड्डी की बहैसियत वज़ीर आला हलफबर्दारी के मौके पर जगह जगह फ्लेक्सी बोर्ड और कांग्रेस के झंडे लगाए गए। 2014 में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के तकरीबन 9 बरस बाद रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है, जिसके सबब पार्टी के कायदीन और कारकुनों में जोशो खरोश पाया जाता है। हलफबर्दारी के सिलसिले में शहर को खूबसूरती से सजाया गया था। हैदराबाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। रियासत में पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी के लिए SPO CI सतह के ओहदेदारों के साथ 30 पुलिस ओहदेदारों को तैनात किया गया है। साथ में खातून मुलाजिमीन पुलिस को भी तैनात किया गया है। पार्टी दफ्तर के 2 मरकजी दरवाज़ों पर नए मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। गांधी भवन की इमारत को भी रोशन किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। इसके साथ ही PM मोदी ने रियासत की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। PM मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर लिखा कि रियासत की तरक्की और उसके शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद का मैं तयक़ुन देता हूँ।
तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने तेलंगाना के अपने हम मनसब रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में कहा कि उनकी रेवंत रेड्डी से फ़ोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने गर्मजोशाना मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने पूरा सर और कामयाब मियाद के लिए रेवंत रेड्डी से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। हरीश राव ने अपने पैगाम में कहा कि इंतखाबात में किए गए वादों पर कांग्रेस पार्टी अमलावरी करेगी, वो इस बात की तवक्को करते हैं। तेलंगाना के एक एडवोकेट ने बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई करने की ख्वाहिश करते हुए एसीबी कोर्ट में दरखास्त दाखिल की है। तेलंगाना हाईकोर्ट के एडवोकेट भास्कर ने एसीबी कोर्ट में दरखास्त दाखिल की। दरखास्त में इल्जाम लगाया गया है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में बदनुवानियां हुई हैं और इसकी जामे तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दरखास्त गुजार ने साबिक चीफ मिनिस्टर के अलावा साबिक वज़रा केटीआर, हरीश राव, एमएलसी कविता के साथ साथ पोलावरम के कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर इन चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की है। दरखास्त में इल्जाम आयद किया गया कि पीने के पानी और आबपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बदनुवानियां हुई हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में लापता 3 तुलबा का तेलंगाना में पता चल गया है। ये तीनों कामारेड्डी रेलवे स्टेशन के करीब पाए गए। मकामी पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और उनके वालिदैन को इस बात की इत्तला दी। तिरुमला में कल शाम 7वीं जमात के 3 लड़के लापता हो गए थे। पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखर, वैभव योगेश और जी श्रीवर्धन दोपहर के खाने के वक्त घर गए और इम्तिहान के लिए वापस स्कूल नहीं आए। असातिज़ा ने वालिदैन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद उनके वालिदैन ने उनकी तलाशी ली। इसमें नाकामी पर तिरुमला 2 टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि तुलबा लैपटॉप के साथ तिरुमला से आरटीसी बस के जरिए तिरुपति पहुंचे, जहां से वो कामारेड्डी रवाना हो गए। तूफान के असर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत बाज़ रियासतों में बारिश हो रही है। तेलंगाना के भी कई अजला में यही सूरत हाल देखी जा रही है। दूसरी जानिब बारिश और दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। सुबह के औकात में कोहर की चादर देखी जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक रियासत में इसी तरह का मौसम बरकरार रहने की पेशकयासी की है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को गाजा में बेरहमाना बमबारी की मजम्मत की और कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी की एक रुकन के तौर पर यह हिंदुस्तान का फ़र्ज़ है कि वह हक़ के लिए खड़ा हो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट में कहा कि 16,000 बेगुनाह शहरी मारे गए हैं, जिनमें तकरीबन 10,000 बच्चे, 60 से ज़्यादा सहाफ़ी और सैकड़ों तिब्बी कारकुन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक पूरे मुल्क का सफाया किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि ये हम में से बाकी लोगों की तरह ही ख्वाब और उम्मीदें रखने वाले लोग हैं, उन्हें हमारी आंखों के सामने बेदर्दी से मारा जा रहा है, हमारी इंसानियत कहाँ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा बैनुल अक़वामी सतह पर जो सही है उसके लिए खड़े हुए हैं। हमने जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों के लिए जद्दोजहद की। हमने आज़ादी की तवील जद्दोजहद के आगाज़ से ही फ़लस्तीन में अपने भाइयों और बहनों की हिमायत की और अब हम पीछे खड़े रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि नस्ल कुशी के ज़रिए ज़मीन से उनका वजूद मिटाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 रियासतों में बीजेपी की ज़बरदस्त जीत को तमाम कारकुनों की इज्तिमाई जीत करार दिया और बीजेपी के तमाम मेंबरान से अपील की कि वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए सख्त मेहनत करने में मसरूफ़ हो जाएं और सरकारी स्कीमों को ख़ास तौर पर विश्वकर्मा योजना की तशहीर करें। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने मोदी का खैर मकदम किया। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मोदी जिंदाबाद।
बार इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। देश को मोदी जी का नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए, यही संदेश हमको मिला है। मैं अभिनंदन करता हूं कि गौरवशाली पल में मैं खड़े होकर और इसका अभिनंदन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज तमिलनाडु के शहर चेन्नई में और उसके आसपास सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई सर्वे किया। ये इलाके समुद्री तूफान मिगजैम से मुतासर हुए हैं। तमिलनाडु सरकार के खजाने और इंसानी वसाइल के बंदोबस्त के वजीर तंगम तेनारासू और चीफ सेक्रेटरी शिवदास मीना के साथ वजीर दिफा ने फिजाई सर्वे किया। राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन के साथ एक मीटिंग भी की और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। फिजाई सर्वे के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मरकजी और रियासती सरकारें बहरान से निपटने के लिए मौसर अंदाज में मिलकर कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी बहरिया और हिंदुस्तानी फिजाइया, हिंदुस्तानी साहिली गार्ड, कुदरती आफा से निपटने की फोर्स, NDRF और दीगर मरकजी एजेंसियां राहत और बचाव कामों में रियासती हुकूमत की मदद कर रही हैं। Of the situation, I took an aerial survey, followed by one-to-one meeting with the Honorable Chief Minister and a review with the officials concerned. Together, we are putting up an effective response to the situation here, and hopefully, we will improve it upon further wherever gaps and weaknesses are there. On behalf of the Prime Minister, let me assure the people of Tamil Nadu that the Government of India is committed to their well-being, a commitment which is reflected in the special attention being paid by the Government of India agency to address the disaster visited upon the people of Tamil Nadu. Honorable Prime Minister has directed Ministry of Home Affairs to release the second installment of 400 वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि आलमी तरक्की के एजेंडे में शमूलियत को नुमायां तौर पर जगह दी जानी चाहिए और ग्लोबल साउथ में ज़्यादा शमूलियत के मसाइल को सुना जाना चाहिए और अगले तरक्की के इंजन के तौर पर उभरने का मौका दिया जाना चाहिए। महकमे इक़्तिसादी उमूर, वजारत ख़जाना और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल इकनॉमिक पॉलिसी फोरम 2023 के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए सीतारामन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हर मुल्क का एक एजेंडा होगा जो बेहतरीन होगा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुनफरिद है, लेकिन कोविड-19 और 3 जगहों की वजह से पैदा होने वाले खलल के बाद ग्लोबल साउथ में वसीतर शमूलियत की तमाम आवाज़ों को और मसाइल को सुना जाना चाहिए और अगले नमू के इंजन के तौर पर उभरने में मदद की जानी चाहिए। हिंदुस्तान की सदारत में G20 में अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत ग्लोबल साउथ में शमूलियत के तई हिंदुस्तान के इरादे और अज़्म की अक्कासी करते हैं। Answer in the Lok Sabha is actually indicative Parliament question about cases taken up by the ED. Now, why do I bring that here specifically? The money is recovered and the money is returned to the banks themselves, subject to correction, because I'm just saying it out, have been restituted to the public sector banks. That amount where I said subject to correction 13,000, I stand corrected. The amount is more than 13,000. It is 15,183.77 crores which have been restituted to the banks. So the bank, the phone banking, NPA, what goes to the bank? This is the kind of constant action being taken by the CBI, ED and the income tax and others. That money both from the willful defaulters and from others who owe. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।